دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 3 پیشکش میرے کارواں۔ اس دوران میں گنبردار کا ساتھی میرے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا وہ میری جامع تلاشی کا ارادہ رکھتا تھا۔ گنبردار سے میری مکالمت نے اسے لمحاتی منخمز میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوالی نظر سے گنبردار کو دیکھنے لگا۔ گنبردار کی دیکھا دیکھی اس نے بھی سیاہ گلاسز کو آنکھوں پر سے ہٹا دیا تھا۔ گنبردار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ ہم اپنی آئی ڈی بعد میں شو کریں گے، پہلے ذرا آپ دونوں کا حدود و رابطہ معلوم کر لیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنے ساتھی کو تحکمانہ اشارہ کیا۔ میں نے اس موقع پر بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ میں نے بڑی شرافت سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ وہ یہی سمجھے میں ان کے FBI والے دھونس میں آ گیا ہوں۔ ویسے میں لمحاتی میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اصلی FBI والے ہیں یا اس آرمی کسی خفیہ مشن پر ہیں۔ گنبردار اس دوران میں وقفے سے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال رہے تھے۔ ان کا انداز بتاتا تھا انہیں واپسی کی جلدی تھی۔ میری تلاشی کی غرض سے آگے بڑھنے والا شخص جب مجھ سے ایک قدم کے فاصلے پر پہنچا تو میں شرافت اور مرعوبیت کے لبادے کو ایک طرف پھینک کر حرکت میں آ گیا۔ میرا یہ فوری اور غیر متوقع رد عمل ان کے لیے بخلاہٹ کا باعث بن گیا۔ اس شخص نے تحکمانہ انداز میں صرف ایک جملہ ادا کیا، اباؤٹ ٹرن۔ میں بجلی کی سی سرحد سے ایک ایری پر گھما اور اسی آسنا میں دوسری ٹانگ چلا دی۔ میری برق رفتار بیک پش کک اس شخص کے سینے پر پڑی۔ میں اپنے ہی جھونک میں تھوڑا آگے آیا، پھر سامنے والی دیوار سے ہینڈ پش لے کر تیچھی ڈبل بیک فلیک لگا دی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی حرکات کا زاویہ ایسا رکھا تھا کہ ان دونوں کے پہلو میں نکل جاؤں تاکہ گنبردار کو اگر فائر کرے تو میں کسی نقصان سے محفوظ رہوں۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی تو حاصل ہوئی، لیکن اسی دوران میں فائر کی مخصوص ٹھکی بھی سنائی دی۔ مجھ سے کیک کھانے والے بیک گیئر میں سفر کرتے ہوئے اپنے گنبردار ساتھی سے جا ٹکرایا تھا اور شاید اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں گولی چل گئی تھی، تاہم اپنی حکمت عملی کے باعث کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہا۔ گن کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا، لہٰذا وہ مخصوص ٹھک اس اپارٹمنٹ سے باہر نہ جا سکی۔ قدموں پر کھڑے ہوتے ہی میں نے پر اصرار دشمنوں کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے لانچ کے فرش پر پڑے تھے۔ میں تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے میری نگاہ گنبردار کے ہاتھ پر گئی۔ وہ گن سیدھی گرتے ہوئے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا۔ میں چیتے کے مانند اس کی طرف لپکا اور اس کے گن والے ہاتھ پر اپنا بوٹ کا کاری ضرب لگائی۔ ادھر اس کے ہاتھ سے گن نکلی، ادھر اس کے حلق سے کرب نقص کاری امر آمد ہوئی۔ میں اس گن پر قبضہ کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مسروق کے ساتھی نے یہ کارنامہ انجام دے ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک لمبی رولنگ کرتے ہوئے مجھ سے 5 قدم کی دوری پر چلا گیا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ لیا۔ وہ دور جا کر مجھے نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے مضروب شخص کے چہرے پر ایک فٹ بال کی رسید کی اور 2 بلیک فلیک لگاتے ہوئے گنبردار کے قریب پہنچ گیا۔ میری یہ حرکت اس کے لیے خلاف توقع تھی۔ مجھے نزدیک آنے کے بعد بجائے اس سے دور بھاگنا چاہیے تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک صدی کے برابر تھا۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے ایک کرسنٹ کک چلا دی۔ کک اس کے گنبردار ہاتھ پر لگی۔ گن کے مخصوص ٹھک کے ساتھ ایک گولی اگلی۔ میں ابھی بالکل محفوظ رہا۔ اس نے میری کھوپڑی میں ہوادار بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بھلا ہو کر ریسنٹ کک کا اس کک کے دوران میں جسم کا بلائی حصہ 45 درجے کے زاویے پر پیچھے کو جھک جاتا ہے۔ گولی میرے سر کے ایک اوپر سے گزر گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور کرسنٹ کی تکمیل پر جیسے ہی میرا پاؤں زمین پر آیا، میں نے فرنٹ فٹ پر حرکت کی اور اندر آتے ہوئے گن پر چپٹا مارا۔ رد عمل کے طور پر اس نے اپنے گنبردار ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ میں نے لپک کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اور گھٹنوں کی پے در پہ ٹھوکریں اس کے پیٹ کے زرعی حصے پر برسانا شروع کر دیں۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس افتاد کے دوران میں اسے گن استعمال کرنے کا ہوش نہ رہا۔ میں نے اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی کارروائی جاری رکھی اور بالآخر تھرو مار کر اسے اپنے اوپر سے پیچھے اچھال دیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں جھٹکتے ہوئے فضا میں بے ڈھنگی پرواز کی اور لینڈنگ کے لیے اپنے زمین بوس ساتھی کا انتخاب کیا۔ اس لینڈنگ نے ان دونوں پر جو قیامت ڈھائی وہ بیان سے باہر ہے۔ پرواز کے دوران میں گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ میں اچھل کر ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ فرش پر اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے یک کے بعد دیگر ان کے تھوبڑوں پر ٹھوکریں رسید کی۔ وہ مضروب تھر چہروں کو تھام کر پیچھے کو الٹ گئے۔ میں آگے بڑھ اور پاؤں کی زور ضرب سے انہیں روئی کے مانند دھن کر رکھ دیا۔ 2 منٹ کے بعد وہ میرے قدموں میں ہام پڑے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں ان کی تلاشی لی۔ ایک کی گن نے اپنے کردار ادا کیا تھا، دوسرے کی گن میں نے اس کے لباس میں سے برآمد کر لیا۔ اسی تلاشی میں ان کے سروس کارڈز بھی میرے ہاتھ لگ گئے تھے، جن پر نگاہ پڑتے ہی جان گیا ان کا تعلق FBI سے تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ اصلی اور نقلی کے چکر میں یہ پرے بغیر اگر وہ واقعی FBI والے تھے تو پھر حالات کی سنگینی 1000 گنا بڑھ جاتی تھی۔ میں ان دونوں کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے اس بیڈ روم میں لے آیا جہاں وسیم کو ہونا چاہیے تھا۔ میرے استفسار پر زیر دم آئے ہوئے FBI کے دونوں ایجنٹوں کو بتانا پڑا کہ انہوں نے ہمارے اپارٹمنٹ کی لائٹ کے ساتھ کیا کیا تھا۔
इनकी निशानदेही पर मैंने मेन स्विच ऑन किया तो अपार्टमेंट में बिजली की फराहमी बहाल हो गई। हमें शिकायत करने के लिए इन्होंने मेन स्विच को ऑफ कर दिया था। वसीम नेम बेहोश था, ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर थी। इसकी जानिब से मुतमईन होने के बाद मैं FBI वालों की तरफ मतवज्जो हो गया। इस दौरान मैं इनकी तरफ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों को जायजा लिया और कहा, इस बात का तो फैसला तो बाद में करूंगा कि तुम FBI वाले हो या नहीं। तुम्हारे सर्विस कार्ड्स और गन्स मेरे कब्जे में हैं जो तुम्हारी शनाख्त के लिए मामून साबित होंगे। अपार्टमेंट की बजाय बिजली बहाल होते ही मैंने खोई हुई गन भी ढूंढ ली थी। फिलहाल इतना बताओ कि इस अपार्टमेंट तुम कैसे और किस मकसद से दाखिल हुए थे? हम तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक ने नफरत अंगेज नजर से मुझे घूरते हुए जवाब दिया, दुश्मनी और दोस्ती का हमें पता नहीं, हमें सिर्फ अहकाम की तकमील करते हैं। किस चीज के अहकाम की? अपने सीनियर्स के अहकाम की, वो डराई से बोला। इसका मतलब है तुम शराफत से जुबान नहीं खोलोगे, मैंने जहर खंदक अंदाज में कहा और इसके साथ ही अपने मुखातिब के कदमों में एक फाइट कर दिया। इस गेंद पर भी साइलेंसर मौजूद था। मखसूस शय की इसकी तेज चीख भी फना होकर रह गई। खामोश गोली इसके पाँव का खाना खराब कर दिया था। मैंने वहशतनाक लहजे में कहा, अगर तुम लोगों के ने मेरे सवाल के जवाबात नहीं दिए तो अगली गोली तुम में से एक के सीने में उतरेगी, इसके बाद दूसरे की बारी आएगी। मेरे लहजे की संगीनी ने इन्हें बावर करा दिया। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इस पर अमल करने में भी किसी किस्म की ताखीर नहीं करूंगा। मैंने जिसके पाँव का कबारा किया था वो मुआज़नाना अंदाज़े से मुझे तकता रहा। दूसरे ने कहा, हाँ हमें हुक्म दिया गया था हम तुम दोनों की असलियत मालूम करने की कोशिश करें। अगर तुम्हारे साथ मशकूक ठहरे तो तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने बेयकीनी से इसे देखा और कहा, असलियत जाने का ये कौन सा तरीका है कि तुमने अपार्टमेंट का मेन स्विच ऑफ कर दिया और हमें काबू करने के लिए अपनी आंखों पर एंटी डार्क ग्लासेस लगाए दिए थे? मेरे इंकशाफ ने इन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं जिससे मुखातिब था इसने रूखे लहजे में कहा, हमारा काम करने का अपना एक तरीका है और मेरा भी अपना एक मुनफरिद तरीका है। मैंने सफाके से कहा, इसके पाँव को निशाना बनाकर एक गोली दाग दी। वो तकलीफदायक शिद्दत से तरफ उठा। मैंने कहा, कहो मेरा तरीकाकार पसंद आया? वो मुझे बेनुक्त सुनाने लगा। गलासरात की इस बरामदी पर मैंने एक मरतबा फिर इसकी ठिकाई शुरू कर दी। वो तकलीफ के बायस कराह ले रहा था, बिलबिला रहे थे मगर इनके किस बल नहीं निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये तो अच्छा हुआ दोनों गन्स पर साइलेंसर फिट थे। मैंने बारी बारी इनका भरपूर इस्तेमाल किया और इनके क्लिप्स को FBI के एजेंटों के हाथ पांव खाली कर दिए। मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं थी कि मैं अमेरिका की जमीन पर इसकी एक ताकतवर एजेंसी के 2 एजेंटों का क्या हशर कर रहा हूँ। रबी मोशे हमन के इशारे पर अब्र पर वहाँ की पुलिस ने मुझे अमेरिका दुश्मन के टाइटल दे चुकी थी। NYPD वाले बड़ी सरगर्मी से मुझे तलाश कर रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज के जरिए बारहा न्यूयॉर्क के अवाम से अपील की जा रही थी कि मेरी गिरफ्तारी या मुखबरी की सिलसिले में वो पुलिस से भरपूर ताउन करे। मुझ पर दर्जन भर यहूदियों के बेहमाना कत्ल का इल्जाम दिया गया था। मैं सेहत इल्जाम से तो इनकारी नहीं था मगर लफ्ज बेहमाना पर मुझे सख्त एतराज था। ये बेहमाना नहीं बल्कि मेरा मन पसंदाना इकदाम था। FBI के दोनों एजेंट तकलीफ की शिद्दत के बायस दोहरे तहरे हुए जा रहे थे। लाउंज से बेडरूम की तरफ आते हुए मैंने स्लाइडिंग विंडो को बंद कर दिया था। चुनांचे इन दोनों मुसीबत ज़दगान की आह बका अपार्टमेंट से बाहर रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। बिजली की फ्राहमी बहाल हो जाने के बाद खिड़की का खुला रहना जरूरी नहीं था। मैं एक मिनट में फिर इन दोनों की जानिब मुतवज्जो हो गया। मेरे एक एक लफ्ज से संगीनी और सफाकी टपक रही थी। तुमने देख लिया मैं किस अंदाज में काम करने का आदी हूँ। मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। सच सच बता दो, तुम क्या सोचकर इस अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे? और इससे पहले ये बताओ कि तुम अपार्टमेंट के अंदर कैसे पहुंचे? दाखिली दरवाजा तो मैंने लॉक कर दिया था और अभी तक लॉक है। लॉन्ज में इन पर सबकत हासिल करने के बाद मैंने ऑन वाहिद में 3 काम किए। मैंने साइलेंसर लगी गन तलाश की, स्लाइडिंग विंडो को बंद किया और अपार्टमेंट के दाखिल दरवाजे को चेक किया था। मुझे जितने शिद्दत से तलाश किया जा रहा था इसके पेश नजर जरा सी कोताही बेएहतियाती भी किसी बड़े नुकसान का पेशखामा साबित हो सकती थी, जबकि वो दोनों FBI वाले के एजेंट होने के दावेदार थे। इस दौरान में वसीम को होश आने लगा और ये एक सेहतमंद अलामत थी। मैं और वसीम तब्दील शुदा हुलियों में थे। हत्ता कि हम जो सूरतें लेकर इस अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे वो भी अब कामयाब मेकअप के पीछे पनाह ले चुकी थी। ये जानना बहुत जरूरी था कि FBI के वो एजेंट वजदान की तलाश में वहाँ पहुंचे थे या कोई दूसरा ही मामला था। हाथ पाँव से बेकार होने के बाद इन्हें महसूस हो रहा था कि अब इन्होंने मुझसे ताउन ना किया तो मैं इन्हें खत्म करने में किसी हेलो हजत से काम नहीं लूंगा। चुनांचे एक ने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम दिनों जब रात 9 बजे अपार्टमेंट से निकले तो हमने ट्राइबेका कर ग्रिल का तुम्हारा ताकुब किया था। तुम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो हम वापस आकर अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। अब ये ना पूछना कि हम अंदर कैसे पहुंचे, इस नौयत के काम में हमें बखूबी आते हैं। ओह, मैंने चौंक कर इसे देखा। तुमने 9:11 बजे तक इस डिपार्टमेंट में छुपे बैठे रहे, हमें खबर ना हो सकी। खैर तुम बताओ, कार्रवाई के लिए तुम लोगों ने इतना इंतजार क्यों किया? तुम्हारे पास आते ही सरगर्मी दिखा सकते थे, इसका हुक्म नहीं। वो सादे लहजे में बोला,
हमें खास तौर पर हिदायत की गई कि साढ़े 11 बजे के बाद हम मैदान में उतरें। बात खत्म करते ही इसने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। इसके अंदाज में छुपी बेचैनी ने मुझे चौंका दिया। बेइख्तियार मेरी नजरें दीवार पर लड़की की जानिब उठ गईं। क्लॉक रात 11:50 का वक्त बता रहा था। अपार्टमेंट में तारीकी छाने से अब तक सिर्फ 10-12 मिनट गुजरे थे। मैंने खुद से मुखातिब शख्स से पूछा, अब ये भी बता दो तुम दोनों किस मकसद से हमारे पीछे लगाया गया था? इसके चेहरे पर मुतामलाना तासरात नमूदार हुए तो मैंने इसे एक हैवी डोज देना जरूरी जाना। इसके गर्दन पर पांव रखते हुए मैंने कहा, सच बोलकर तुमने अपने लिए रायत हासिल कर सकते हो और ये आखिरी मौका है। इसके बाद तुम दोनों के साथ जो सलूक करने वाला हूँ वो तुम्हारे तस्वुर में नहीं आ सकता। इसकी आंखों में मुझे मौत के साए लहराते हुए दिखाई दिए। इस दौरान में वसीम पूरी तरह होशो हवास में आ चुका था और इसने महाज का दूसरा सरा तसल्ली बख्श अंदाज में संभाल लिया था। इन दोनों बदबख्तों ने अंधेरे की आड़ में इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। वो इस वक्त बड़े खतरनाक मोड में नजर आ रहा था। मैंने जिस अंदाज में सूरत हाल को अपने हक में फेरा, इसने वसीम का हौसला बढ़ा दिया था। मैंने जिससे सवाल किया था वो मुनमुनाती हुई आवाज में बोला, तुम चाहे मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमें तुम लोगों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। हम महज ये जानते हैं तुम दोनों अपनी आईडी तब्दील करने वाले हो। कोई एजेंट आजकल तुमसे राब्ता करने वाला है। इस अपार्टमेंट में तुम्हारा कयाम आरजी है। कागजात बनते ही तुम दोनों अमेरिका से निकल जाओगे। इसके इंकिशाफात से बड़े सनसनीखेज थे। हमारी आईडी की तब्दीली वाली बात सिर्फ 4 अफराद को मालूम थी, यानी मैं, वसीम, विंग हिंग और मिस्टर जोनी, जो हमारे कागजात तैयार करने वाला था। ये राज अगर FBI वालों तक पहुंच जाता तो इसका यही मतलब था इन्हीं 4 अफराद में से किसी ने गद्दारी की थी। मिस्टर हिंग मेरे लिए भरोसे का आदमी था। मैं और वसीम अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। आज जाकर मिस्टर जोनी ही बचता था। क्या इसने FBI वालों को हमारे मंसूबे के बारे में बता दिया था? जोनी मिस्टर हिंग की निगाह में काबिल एतमाद था, लेकिन मैं जिस किस्म के हालात से दो चार था, इनमें से किसी अमरीकी पर तोक्तन इतबार नहीं कर सकता था। मेरे हवाले से मेन हीटर में जिस किस्म की एमरजेंसी नाफिज थी, अब इसमें भी अपसेट की तवक्को की जा सकती थी। ये तमाम पुरतशवीश ख्यालात एक लम्हे के लिए मेरे जहन से गुजरे और मैंने इंतहाई चुपते हुए लहजे में कहा, तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि हम दोनों आईडी तब्दील करने के बाद अमेरिका से निकलने वाले हैं? हमारे अपने सोर्सेज होते हैं, वो नहीफ सी आवाज में बोला और एक मरतबा फिर अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। इस नजर में गहरी तशवीश पाई जाती थी। मैंने इसके तासरात का खुसूसी नोटिस लिया। इसके अंदाज से इस्तराब झलकता था। यूं महसूस होता था जैसे इसे किसी खास लम्हे का इंतजार हो। मैंने वक्त के एक पल का दुस्त इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम जाहिर ना करो, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों की मालूमात का जरिया मिस्टर जोनी है, वो एजेंट जिसके तौर से हमारी नई आईडी बनने वाली है। तुम गोया तुमने अपनी असलियत जाहिर कर ही दी। इसकी आवाज में कमजोर सा तमस्सुर खड़ा था। मैंने कतई लहजे में कहा, मैंने अपनी नहीं मिस्टर जोनी की असलियत खोली है। वैसे आप लोगों ने मुझे बहुत मस्त यूज किया है। इसने हैरत भरी वाली नजर से मुझे देखा मगर खामोश रहा। मैंने कहा, मैंने FBI नामी इस एजेंसी की बहुत तारीफ सुनी थी। एक आलिम इससे खौफजदा था, मगर तुम्हारी कारकर्दगी को देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। क्या तुम लोग ऐसे ही सुस्त रफ्तारी से काम करते हो? इसने जवाब देने से कबल एक मरतबा फिर दस्ती घड़ी पर नजर डाली और बोला, बहुत जल्द हमारी कारकर्दगी और रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। हम दो अफरेद को जेर करके तुम पता नहीं क्या समझने लगे हो। मैं खुद को वही समझ रहा हूँ जो हूँ। मैंने इसकी आंखों में बहुत दूर तक झांका। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ये सवाल मैंने इसलिए किया कि जान सको FBI वालों को किसकी तलाश है। क्या वो इस सरगर्मी के जरिए वजदान यानी मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती तो वो लोग इतनी सुस्त रवि का मुजाहरा ना करते। मैं तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में टॉप पर था। मुझे छापने के लिए महज 2 एजेंट ना काफी थे। अगर इन्हें ये शक था कि आईडी को तब्दील करने के बाद अमेरिका से निकलने वाले वसीम और वजदान हैं, तो फिर वो भारी जमीयत के साथ इस अपार्टमेंट पर धावा बोलते। इस सिलसिले में वो एक लम्हे ज़ाया करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो थोड़े तामिल के बाद बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मगर इतना मुझे मालूम है, तुम एक खतरनाक दुश्मन हो। तुम्हारे हालिया अमल ने भी ये भी साबित कर दिया है कि तुम नहायत ही सफाक हो। मैं FBI और CIA वालों से ज्यादा सफाक और जालिम नहीं हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जवाब देने की बजाय इसने एक मरतबा फिर रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हें किसका इंतजार है? ठीक 5 मिनट बाद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वक्त रात के 11:55 हुए हैं। ठीक 5 मिनट बाद का मतलब था एन रात के 12 बजे। इसका अंदाज बताता था 12 बजे कोई वहां पहुंचने वाला है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे। इसी कलील वक्फे में मुझे अपने बचाव के लिए कोई अमली कदम उठाना था। वो दोनों एजेंट मेरे लिए बेकार थे। वैसे वो फिलहाल खुद अपने लिए बेकार हो चुके थे। मैंने इन्हीं की गनों को इस्तेमाल करके इनके हाथ पांव से ऐसी मेहंदी लगा दी थी कि वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं थे। हम अपने जिस साथी के हमारा ट्राइबेका ग्रिल के नाम रेस्टोरेंट में गए थे, इस पर तुमने कोई काम किया?
वो पलक झपकते मेरे सवाल की गर्ज गायत तक पहुंच गया। ठोस लहजे में बोला, हमारी मालूमात के मुताबिक जोनी इसी शख्स के इमा पर तुम्हारी नई आईडी तैयार करने वाला था। ऊपर वाले तुम्हारे साथी के साथ क्या सलूक करेंगे हम नहीं जानते। हमारे बड़ों ने इस बात के बारे में कुछ नहीं सोचा। हम अपने काम से काम रखते हैं और गैर जरूरी सवाल नहीं करते। हमारे लिए सिर्फ यही काम थे कि तुम दोनों को काबू करें। और 12 बजे इसने इस अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया जैसे इसे कुछ याद आ गया हो। इसके आखिरी अल्फाज 12 बजे ने मुझे बता दिया कि 4 मिनट बाद कुछ होने वाला है। ज्यादा इम्कान इसी बात के थे कि इसी अपार्टमेंट में होने वाला है। मेरे हाथ में सिर्फ 4 मिनट का वक्त बाकी था। इस शख्स ने जोनी और आईडी की तब्दीली का पुरवसोख जिक्र करके इस बात की तस्दीक कर दी थी कि हमारे सिलसिले में जोनी ही ने गद्दारी की थी। इस हिसाब से विंग हिंग की ज़ात भी खतरात में घिरी हुई थी। अगर एफबीआई और आईडी तब्दील करके अमेरिका से निकलने वालों में दिलचस्पी ले रही थी तो फिर इनके लिए विंग हिंग की शख्सियत भी खाली दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। लगभग 11:30 बजे मैंने मिस्टर हिंग से आखिरी गुफ्तगू की थी और इस वक्त वो बखैर आफिस था। मेरे ज़हन में आया कि फौरी तौर पर मुझे मिस्टर हिंग से राब्ता करना चाहिए। इसे यहाँ पेश आने वाले हालात और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी था, कहीं वो बेखबरी ही में न मारा जाता। मैंने निगाह में वसीम को इशारा किया और आइंदा 2 मिनट के अंदर हम दोनों ने इन एफबीआई एजेंट को घसीट कर एक वॉशरूम में पहुंचा दिया। वो हाथ पांव से बुरी तरह जख्मी थे, अपने कदमों पर चलकर अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकते थे। ताहम एहतियात के पेश नजर इन्हें वॉशरूम में पहुंचाने के बाद मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया। इनके सर्विस आईडी कार्ड्स और गन्स भी मैंने वॉशरूम के फर्श पर फेंक दी। ये सब मेरे लिए बेकार था। इनसे मुतल्लिक अशिया इनके पास रहती तो ज्यादा अच्छा था। ये वसीम वाले बेडरूम का वॉशरूम था। जब तक बाहर से इस वॉशरूम का दरवाजा खोला जाता वो वहां से निकल नहीं सकते थे। इस काम से फारिग होने के बाद मैं टेलीफोन सेट की जानिब लपक पड़ा। मेरे और एफबीआई एजेंट वालों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था मैंने वो तमाम तर गुफ्तगू और तशवीश भरे लहजे में इससे कहा। वजदान, हमें फौरी तौर पर इस अपार्टमेंट से निकल जाना चाहिए। NYPD के बाद FBI वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने फोन का रिसीवर उठाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है, लेकिन अपार्टमेंट छोड़ने से पहले मैं एक जरूरी कॉल करना चाहता हूँ। किसको? मैं इसने पूछा। मैंने डायलिंग मुकम्मल करने के बाद कहा, मिस्टर हिंग को। वो तफक्कर खामोश नजर से मुझे तकने लगा। डायलिंग की तकमील के साथ ही दूसरी जानिब घंटी बजने लगी। ये विंग हिंग ने घर का नंबर था। लगभग आधा घंटा पहले इस नंबर पर मेरी इससे बात हुई थी। मैंने हिंग से डॉक्टर मोंगर फोशो का सेल नंबर लिया था। डॉक्टर मोंगर साहिल को मैंने इंतहाई गैर यकीनी सिचुएशन में छोड़कर आया था। पता नहीं वो अब को इंतहाई गैर किस हाल में होंगे। FBI वालों की शैतानी ने मुझे एक लम्हे की फुर्सत नहीं दी कि मैं काठमांडू के मुसाफात में एक निगाह डाल सकता, और अभी तक हालात की इस दम ज़रीफी थी कि मेरे ज़हन इस वक्त तक मुहाज़ों पर निबर आजमा था। 5वें घंटे पर दूसरी जानिब से रिसीवर उठा लिया गया था। फिर ईयरपीस में मुझे मिस्टर हिंग की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो वजदान, क्या ये तुम हो? कॉलर आईडी से इसने समझ लिया था कि ट्राई ब्रेकर के अपार्टमेंट से फ़ोन किया जा रहा है। मैंने जवाब में कहा, हाँ मैं वजदान बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फ़ोन पर तफसीली बात नहीं हो सकती। तुम खैरियत से तो हो ना? अभी तक खैरियत से हूँ, लेकिन आइंदे के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। वो इस सुनारी लहजे में बोला, वहाँ तुम्हारी तरफ गड़बड़ हो चुकी है और यहाँ मेरी जानिब होने वाली है। तुम फौरी तौर पर इस अपार्टमेंट को छोड़ दो। मैं घर से निकल ही रहा था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। मैं रिसीवर रखने के बाद आर्जी तौर पर इस रिहाइशगाह को छोड़ रहा हूँ। तुम एक सेल नंबर नोट कर लो। हाँ हाँ बोलो। मैंने वॉल क्लिक की जानिब देखते हुए कहा। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। इसने मज़कूरा नंबर दोहराया। मैंने सरदस्त इस नंबर को अपने जहन की याददाश्त खाने में फीड कर लिया। वो बोला, ये मेरे एक प्राइवेट सेल का नंबर है, तुम इस नंबर पर बाद में मुझसे रब्ता करना। ओके बाय, गुड नाइट। मैंने जवाब में इसे गुड नाइट कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा ये रात का सलाम इस तक पहुंचा होगा, क्योंकि इसी लम्हे से रिंग ने रिसीवर क्रेडिट कर दिया था। मिस्टर हिंग से होने वाली इस मुख्तसर गुफ्तगू से पता चला कि इसकी तरफ भी FBI वालों ने कोई कार्रवाई डाल दी थी या फिर डालने वाले थे। हिंग ने मुख्तलिफ मराहिल में हमारी भरपूर मदद की थी और जोनी वाला मामला तो बिल्कुल ताज़ा था। हमारे डॉक्यूमेंट्स वाली विंग हिंग के तवस्सुल मिस्टर जोनी से हुई थी। अगर FBI वाले वजदान की तलाश में नहीं भी थे तो भी ये सूरत हाल हम सबके लिए इंतहाई खतरनाक थी। आने वाले लम्हात संगीन से संगीन तर साबित हो सकते थे। हमने अपने जरूरी सामान को एक बैग में भरा और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गए। मैं गाड़ी और अपार्टमेंट की चाबियां उठाना नहीं भूला था। मैं अपार्टमेंट को लॉक करके जाना चाहता था और अफरार होने के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत भी थी। हम बैरूनी और दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे, इतना ही घंटी बज उठी। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। आधी रात को हमसे मिलने वहां कोई नहीं आ सकता था। आने वाले यकीनी इन्हीं के साथी थे जिन्हें मैंने वॉशरूम में बंद कर दिया था। मैं दरवाजा खोलकर FBI वालों को वेलकम नहीं कर सकता था। ये आबेल मुझे मार जाने वाली बात होती। मैंने वसीम को इशारा किया और अपने बेडरूम की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस दौरान मैं एक मरतबा फिर घंटी बज उठी। बाहर जो कोई भी था एक खास अंदाज में बटन दबाया जा रहा था, जैसे अंदर मौजूद अफराद को कोई इशारा दे रहा हो। ऐसी इशारेबाजी करने वाला हमारा मुलाकाती नहीं हो सकता था।
वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़या था। मैंने बेडरूम में दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। वसीम ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? हम इस बिल्डिंग से फरार हो रहे हैं, मैंने कहा, और स्लाइडिंग विंडो की सिमत बढ़ गया। मेरे बेडरूम की एक खिड़की इमारत की गंभीर जानिब खुलती थी। मैं अमदोशद का रवायती रास्ता इख्तियार करके खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। इन लम्हात में नाजुक हमें वो राह अपनाना थी जो गैर रवायती हो, वो चाहे कितनी भी पुरखतर क्यों ना हो, लेकिन इस राह पर चलते हुए FBI वालों से टकराव का अंदेशा ना हो। मैंने पर्दा हटाकर विंडो को स्लाइड किया और झुककर बाहर झांकने लगा। इमारत के एक भी जाने मुझे सुकून के आसार दिखाई दिए। हर तरफ अमन और खामोशी थी। अगर हम फर्स्ट फ्लोर के इस अपार्टमेंट से किसी तरह जमीन पर पहुंच जाते तो FBI वालों को जल्द देने में कामयाब हो सकते थे। मैं जैसे ही सीधा हुआ, वसीम ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, क्या तुम इस खिड़की के रास्ते नीचे पहुंचना चाहते हो? और कोई जरिया हमारे सामने नहीं है, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, और ना ही कोई नया जरिया तलाश करने का वक्त है। अगर हम चंद मिनट मजीद यहाँ रुक गए तो बेमौत मारे जाएंगे। घंटी बजाने वाले हमारी जानिब से कोई रद्द अमल ना पाकर शराफत से वापस नहीं चले जाएंगे। वो अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। इधर मेरी बात खत्म हुई, इधर अपार्टमेंट के बाहर फायर आवाज गूंजी। मैंने 10वें सेकंड हिस्से में अंदाजा लगा लिया। पहले फायर करके दरवाजा का लॉक तोड़ा गया था। अज़ाबाद दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसे होंगे। ऐन मुमकिन था वो यहाँ अमल इस बेडरूम के दरवाजे के साथ भी दोहराएं। FBI वालों के पास गोलियों की कमी थी और ना ही इख्तियारात की। वसीम ने बैग के स्ट्रेप को गर्दन के ऊपर से घुमाकर कंधे पर लटका लिया। मेरी जानिब देखते हुए बोला, चलो वजदान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम एक के बाद दिगरे स्लाइडिंग विंडो से बाहर निकले। वो विंडो जमीन से कमोबेश 15 फुट की बुलंदी पर वाक़या थी। यहाँ से एक मखसूस टेक्निक के जरिए हम बआसानी इमारत के कब में पहुंच सकते थे। शर्लिन टेम्पल में मार्शल आर्ट्स की तरबियत के दौरान मुझे इस टेक्निक की प्रैक्टिस भी कराई गई थी। ये एक तरह की स्लाइडिंग थी जो हाथों की भी कराई गई थी। बहरहाल इमरजेंसी में हमें दस्तानों के बगैर ही काम लेना था। मैंने विंडो के निचले हिस्से पर दोनों हाथ जमाए, बॉडी को नीचे लटका दिया। मेरा कद 6 फुट से निकलता होगा। गोया 15 फुट की बुलंदी में लगभग 7 फुट की कमी होगी। 1 फुट की कसीर बाजुओं ने पूरी कर दी थी। मैंने दीवार के साथ दोनों हथेलियों को जमाते हुए जिस्म को आज़ाद छोड़ दिया। इस दौरान में मेरी तमाम तवज्जो इस पुश पर थी जो मैं हथेलियों के जरिए दीवार पर मुंतकिल कर रहा था। देखते ही देखते मैं जमीन पर पहुंच गया। इसी लम्हे एक खौफनाक फाइट की आवाज़ मेरी समात तक पहुंची। मैंने बेसाख्ता तक गर्दन उठाई और ऊपर देखा। वसीम भी मेरे अंदाज में खिड़की से नीचे लटक रहा था, लेकिन अभी भी इसने स्लाइडिंग शुरू नहीं की थी। फायर की आवाज़ ने इसे गड़बड़ा दिया और फिसलते के बजाय कूदने वाले अंदाज में नीचे को आया। इस दौरान मैं उठकर खड़ा हो चुका था। वसीम जी बेढब अंदाज में नीचे आया था। अभी इसे संभलने में चंद सेकंड लग गए और इसी मोहलत में मैंने खुली हुई खिड़की के एक शख्स का चेहरा नमूदार होते हुए देखा। अब इस बात में किसी शको शुबो की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि चंद लम्हे पहले मैंने फायर की जो आवाज़ सुनी थी वो इस गोली के जरिए बेडरूम के दरवाजे का लॉक तोड़ा गया था। मैंने खिड़की में नमूदार होने वाले चेहरे में हरकत महसूस की और दूसरे ही लम्हे एक गनबरदार हाथ में मेरी निगाह में आ गया, जो कोई भी था हमें निशाना अजल बनाने वाला था। मैंने चीखकर वसीम को पुकारा, भागो! इससे पहले कि वसीम उठकर मेरा साथ देता, खिड़की में नमूदार शख्स ने गोली दाग दी। इसने इस दौरान एक सिमत दौड़ लगा दी। फायर की मखसूस आवाज़ सुनते ही मैंने पलट कर देखा और मेरा दिल दहक से रह गया। वसीम एक को बाजू थामे हुए मेरी सिमत आ रहा था। अगले इम्कान यही था कि गोली इसके बाजू में लगी थी। इस मौके पर वसीम के हवास बाख्ता होने की बजाय बड़े बहादुर और होशमंदी का सबूत दिया और तिरछे दौड़ते हुए मेरे करीब पहुंच गया। फिर हमने एक सिमत में भागना शुरू कर दिया। इसी लम्हे मुझे अपने इकब में मुतअद्दिद गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। यकीनी तौर पर यह आवाज़ें वसीम ने भी सुनी थी। हमारी रफ्तार में कई गुना इजाफा हो गया। जब मौत ताकुब में हो तो जिंदगी को बचाने की कोशिश इंतहा से गुजर जाती है। हम भी एक नामालूम रफ्तार से भागे चले जा रहे थे। जल्दी ही हम फायरिंग रेंज से बाहर निकल आए। हमारे सामने कोई मुतय्यन मंजिल नहीं थी। बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ जाकर गाड़ी निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। FBI वाले खूनखार भेड़ियों के मालिक हमें सूंघ रहे होंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इनकी चलाई हुई गोलियों का निशाना बनने से महफूज रहे, वरना इन्होंने अपार्टमेंट की खुली हुई खिड़की से फायरिंग करके हमें भूनने की भरपूर कोशिश की थी। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग वाशिंगटन मार्केट पार्क के नज़दीक थी। हम बेदरीक भागते हुए हेयरस्टन स्ट्रीट पर निकल आए थे। यहाँ एक बड़े स्टोर के कब में चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड वाक़या था। हम सांस हमवार करने के लिए ग्राउंड के गेट के नज़दीक रुक गए। वो यकबस्ता मौसम सरमा की आधी रात का अमल था। पार्क में होगा आलम था, अलबत्ता गार्डन लाइट्स रोशन थी। मैं एक हिस्से की जानिब रिंग गया जिधर अच्छा खासा अंधेरा था। वसीम के बाजू ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। मैंने तारीकी की पनाह में आते ही वसीम से पूछा, तुम्हारे बाजू का क्या हाल है? गोली लगी है, हाल का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो, वो जेदारी से बोला। मैंने इसके जख्मी बाजू को टटोलते हुए कहा, अंदर घुस बैठी है या सिर्फ छूकर गुजरी है? मेरा ख्याल है महज छूकर गुजरी है, इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं अपने बाजू में बड़ी तकलीफ और जलन से महसूस कर रहा हूँ। इस दौरान में मेरी टटोल नतीजा खैर साबित हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों की कारगिरी से ये जान लिया था कि गोली इसके बाजू के गोश्त को छीलते हुए गुजरी थी। ये ज्यादा तशवीशनाक बात नहीं थी। बाजू में से रसने वाले खून ने आस्तीन को भिगो दिया था, ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर थी।
अगर बाजू पर कोई कपड़ा कसकर बांध दिया जाता तो खून के रिसाव को रोका जा सकता था। हमने इस वक्त चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड के नज़दीक जिस मुकाम पर पनाह ले रखी थी वहाँ ज़्यादा देर तक क़याम करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि हैरिसन स्ट्रीट वाशिंगटन मार्केट पार्क से ज़्यादा दूर नहीं थी। हम FBI वालों को वक्ती तौर पर गुजा दे आए थे, लेकिन इसकी तरफ से बेफिक्री किसी नाकाबिल तुलाफी नुकसान का पैगाम साबित हो सकती थी। मैंने वसीम के कंधे से बैग उतार लिया और इसे खोलकर किसी ऐसे कपड़े की तलाश में मसरूफ हो गया जो पट्टे के सूरत इसके जख्मी बाजू पर बांधा जा सकता था। जब मुझे मतलूबा कपड़ा ना मिल सका तो मैंने बैग में रखी हुई अपनी एक शर्ट की आस्तीन को फाड़ कर एक लंबी पट्टी हासिल कर ली। फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैंने वसीम के घायल बाजू को बैंडेज का लिबादा पहना दिया। थोड़ी देर बाद हमने एक आड़ से पनाह गाह से बाहर निकल आए। हैरिसन स्ट्रीट पर नपे तले कदमों से चलते हुए हम ग्रीनविच स्ट्रीट पर निकल आए। इस वक्त हमें बड़ी शिद्दत से किसी येलो कैब की तलाश थी, लेकिन वो कहीं नजर आ रही थी। ग्रीनविच स्ट्रीट पर बाएं जाने मुड़ने के बाद हम आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद हम ट्राइबेगा ग्रिल रेस्टोरेंट के नजदीक पहुंच गए। मस्कुरा रेस्टोरेंट 375 ग्रीनविच स्ट्रीट पर वाक़या है। आज हम तीनों ने इसी रेस्टोरेंट पर डिनर किया था। इस रेस्टोरेंट के सामने से फ्रैंकलिन स्ट्रीट निकलती है। वसीम ने कहा, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है फ्रैंकलिन स्ट्रीट सबवे इंटरेस्ट मौजूद है। हमें फौरी तौर पर खुद को अंडरग्राउंड कर लेना चाहिए। तुम गोया NYPD के इल्ज़ाम की तायद कर रहे हो। मैंने इसे छेड़ा। वो मेरी बात को नहीं समझ सका। बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वाले मुझे अमेरिका दुश्मन का टाइटल दे चुके हैं, यानी मैं अंडरग्राउंड माफिया की टक्कर का मुजरिम हूँ। तुम मेरे साथ अंडरग्राउंड होकर इनके ख्याल की तस्दीक करना चाहते हो। ओह, इसने एक बोझल सांस खारिज की। इन संगीन लम्हात में भी तुम्हें तफरीकी सूझ रही है। वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया। मैंने कहा, हालात संगीन हो या रंगीन, गमगीन होने से इन्हें बदला नहीं जा सकता। फिर क्यों खामखा ज़हन को परेशान किया जाए? मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो मेरे साथ फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इस वक्त फ्रैंकलिन स्ट्रीट का कारोबारी जिंदगी इख्तिताम पजीर था। हम स्ट्रीट से थोड़ा हटकर शॉपिस और मॉल्स के नज़दीक पहुंच गए थे। इस तरह हमें जगह खुल और बाज नीम तारीकी की आड़ मिल रही थी। मैंने महसूस किया चलते हुए वसीम थोड़ा लंगड़ा रहा था। शायद इसके पाँव में कोई गड़बड़ हो गई थी। अपार्टमेंट की खिड़की इसने जिस अंदाज में छलांग लगाई थी, इसके नतीजे में इसके साथ कुछ भी हो सकता था। क्या तुम अपने पाँव में तकलीफ महसूस कर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, सीधी पाँव की एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है, इसने बताया। मगर अपार्टमेंट के पिछवाड़े से तो तुमने दौर में मेरा साथ दिया था। मैंने उलझन ज़दा नज़र में इसे देखा। क्या इस वक्त तुम्हें ये तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी? नहीं, वो कतिस से बोला। शायद इस वक्त चोट गर्म थी, इसलिए दर्द महसूस नहीं हुआ। अब हमारी रफ्तार कम होने और सर्द मौसम के बायस ये तकलीफ अपना रंग दिखा रही है। मैंने महसूस किया वो अच्छी खासी मुश्किल में मुब्तला था। एक तो पहले ही इसका बाजू जख्मी था और अब ये पाँव वाला मामला सामने आ गया था। मैंने नीम तरीके में इसके बाजुओं को मायना करके पट्टी तो बांध दी थी, लेकिन सही सूरत हाल ने मुझे बता दिया था कि अब वो रोशनी में तफसीली चेकअप की जरूरत थी। चारों जानिब चौकन्ना नजर से देखते और मुहतात अंदाज में कदम उठाते हुए मैंने वसीम से पूछा, सबवे इंटरेस्ट यहाँ से कितनी दूर है? मैं कहीं आराम से बैठकर तुम्हारे पाँव का मुआयना करना चाहता हूँ। समझ लो हम पहुँचने ही वाले हैं। वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए बोला। वसीम की मौजूदा हालत से मुझे तशवीश होने लगी। FBI के खतरनाक एजेंट हमें ट्राइबेका की सड़कों पर ढूंढते फिर रहे थे। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी, अभी तक हम तक रसाई हासिल नहीं कर सके थे। अगर अचानक इन लोगों से मुठभेड़ हो जाती तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। वसीम अब इस मुस्तैद के काबिल नहीं रहा था कि जिसका थोड़ी देर पहले इसने मुजाहिरा किया था। इन्हीं पुरअंदेश ख्यालात के साथ साथ खुदा कर करके हम वाले अनट्रस्ट में दाखिल हुए। वसीम ने कहा, अब इस सबवे ट्रैक पर चार्टर बने चलती हैं। 1 लाइन और 9 लाइन तो फ्रैंकलिन स्ट्रीट के स्टेशन पर रुकेंगे। तुम अगर 2 लाइन और 3 लाइन बगैर रुके आगे बढ़ जाएगी। हमारे पास 1 और 9 में से इंतखाब का इख्तियार है और इससे पहले ये फैसला भी करना होगा कि हमें अप टाउन जाना है या डाउन टाउन। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेन में सवाल होने से ज़्यादा ज़रूरी एक और काम भी है। मैंने एक अलग थलग बेंच की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे पाँव का मुआयना करूँगा। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने इजाफा करते हुए कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सुबह अभी इसी ट्रैक पर हमने अप डाउन का सफ़र किया था। वो ज़्यादा दे अंदाज में बोला, बिल्कुल दोस्त, हम 3 लाइन में स्रोए से वॉल स्ट्रीट तक पहुँचे थे। 3 लाइन एक एक्सप्रेस ट्रेन है, फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर वो नहीं रुकती। मैंने जिस बेंच का इंतखाब किया इधर खास खामोशी और सुकून था। वैसे भी आधी रात के बाद सबवे स्टेशन पर रेल पेल और रौनक नजर नहीं आती जो सुबह और शाम में दिखाई देती है। मैंने वसीम के मुतासरा पाँव वाला जूता उतारवाया और जैसे इसका पाँव का मोजे से उतारा मैं इसे देखकर चौंक उठा।
मस्कुरा पाँव टुकने के मुकाम से अच्छा खासा सूजा हुआ था। पहली नज़र में यही महसूस हुआ कि इस टुकने की में शदीद नोयत की मोच आ चुकी है और यकीनन ये मोच खिड़की से कूदने के नतीजे में आई थी। मैंने घुमा फिरा कर अच्छी तरह इसके पाँव का जायजा ले लिया। गोश्त कहीं से नहीं फटा था, ताहम टुकने पर नमूदार होने वाले वम तशवीशनाक था। इसका बायां बाजू और दायां पाँव एक तरह से बेकार होकर रह गया था। बाजू वाला जख्म तो गर्म जैकेट के अंदर छुपा हुआ था और देखने वालों को अपनी जानिब तवज्जो नहीं करता था, मगर पाँव की मोच मोरे और जूते के अंदर पोशीदा होने के बावजूद भी चाल की लंगड़ाहट से हर किस्म का दावत की नज़ारा देता था। तुम्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, मैंने इसे कहा। एपिसोड 3 का इख्तिताम यहीं पर होता है। एपिसोड 4 देखने के लिए आगे समाअत फरमाएं।